Hello and good morning all of you. Welcome to the class of economics. So again, we are in the online class, right? And in our offline class, we have discussed about the calculation of standard deviation of chapter number 10th of statistics in individual series, right? Chapter number 10, measures of dispersion. Till yet, we have discussed how we can calculate standard deviation in an individual series. And now today we will start with the discussion of calculation of standard deviation in discrete and continuous series. Have a look everyone, there are 4 methods by which you can calculate standard deviation under discrete series. Number 1 is actual mean method. Actual mean method means in this method you have to firstly calculate mean, and then after by using mean you can further calculate standard deviation. The calculations are quite easy. Firstly look at the formula. Standard deviation is denoted by this sign. Standard deviation here equals to under root sigma f small x square divided by n. F small x square divided by n. अब ये small x क्या है, कैसे कैलकुलेट हुआ, ये सारी चीजें हम समझना स्टार्ट करते हैं. Have a look. Example number 30. Size and frequencies are given in the question. Size is the value of x and frequency is f. Only these 2 columns are given to you, right? Now you are supposed to calculate standard deviation by using this formula. How can we calculate? Have a look. Firstly you have to calculate mean. आपको mean निकालना है. ये जो f small x square है, इसके लिए जो x आ रहा है, इस x का कैलकुलेशन देखें कैसे किया जाएगा. ये x जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इसका कैलकुलेशन करने के लिए मीन की वैल्यूज को माइनस करना है. किसमें से? x में से. ये x डेविएशंस है तो ये वैल्यू आएगी मीन x माइनस मीन. और मीन हमें पता होना चाहिए कि हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं. मीन की कैलकुलेशन जब भी हमें डिस्क्रीट सीरीज में करनी है तो हमें सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो 8th चैप्टर का एकदम छोटा सा रिवीजन जिसमें मैंने क्या किया था, मीन निकालना सीखा था. तो मैंने यहाँ पे सिग्मा fx किया. fx means f multiplied by x at different levels, right? तो f into x का टोटल किया और f का टोटल किया and here I have calculated the value of mean. मीन निकाल दिया मैंने. अब मुझे स्मॉल x निकालना है, मीन्स डेविएशंस फ्रॉम x निकालना है. आप देखिए बहुत क्लियरली बुक में लिखा हुआ है कि ये जो स्मॉल x की वैल्यूज आई है ये कैपिटल x माइनस x बार करके आई है. Here are the values of capital X and here I am having the value of x bar, that is mean. So 15 minus 14 is equals to minus 9. 10 minus 14 is equals to minus 4. 15 minus 14 is plus 1 and 20 minus 14 is plus 6. I hope you all are done with this calculation. आपको समझ में आ गया है how we have calculated small x. Now, after the calculation of small x, we are supposed to find out the squares of these x. 9 9s are 81. स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का साइन हमें हटा देना है. 4 into 4 is equals to 16. 1 into 1 is equals to 1 and 6 into 6 is equals to 36. हमने यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लिया है. आगे देखिए. Now, the column number second need to be multiplied by column number 5. f into x square करेंगे. f को x square का मल्टीप्लाई करेंगे. Then we will get fx square. और फिर इस fx स्क्वायर का टोटल करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देंगे. n और सिग्मा f आर वन इन द सेम थिंग. ठीक है, ये दोनों सेम ही चीजें हैं. तो देखें किस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया. हमारे पास x की वैल्यूज थी, f की वैल्यूज थी. हमने सबसे पहले मीन निकाला. कैसे निकाला हमने मीन? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करके निकाला. देन आफ्टर हमने स्मॉल x कैलकुलेट किया. हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट दिस स्मॉल x? x माइनस x बार करके, यानी द वैल्यू ऑफ x माइनस द वैल्यू ऑफ मीन. तो स्मॉल x आया. फिर हमने इसके सिंपल स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर करने के बाद में हमने क्या किया, fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर दिया अंडर रूट में. तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5.38. So the next method to calculate standard deviation is direct method. Direct method is quite simple. What you have to do, have a look. You have to put this formula. Standard deviation is equals to under root sigma f capital X square divided by n minus whole square of mean. अब देखिए बेटा, होल स्क्वायर ऑफ मीन है तो
तो पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो ये कि इस क्वेश्चन में हमें मीन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मीन का कैलकुलेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें मीन का होल स्क्वायर करके उसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो मीन का कैलकुलेशन करना है, ये वाली बात समझ में आ गई है। आगे देखिए अब कैसे कैलकुलेशंस करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम एक डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 30 जो पीछे अभी हमने एक्चुअल मीन मेथड से किया था उसी का सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चंस आप खुद करके देखेंगे, राइट? उनकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा whether you are capable of solving or not. Have a look. Once again, x and f are given in the question. fx मैंने किया y because I need to calculate mean. मीन मेरा फॉर्मूले में यूज होने वाला है तो मैंने मीन निकालना है। कैसे मीन निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके। तो ये वाली कैलकुलेशन सेम टू सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसी, नो डिफरेंस। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करें, पिछले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में दो ही डिफरेंसेस है। वहां पे यहाँ स्मॉल एक्स था और ये वाला पोर्शन था ही नहीं। तो यहाँ स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में क्या डिफरेंस है? स्मॉल एक्स होता तो मुझे x माइनस एक्स बार करके डेविएशंस निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ कैपिटल एक्स है। इट मीन्स ये जो कैपिटल एक्स आपको गिवन है, आपको इस कैपिटल एक्स का स्क्वायर कर देना है। इन वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे आप, फिर इस स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आई वुड सजेस्ट यू टू राइट दिस ओवर हेयर। क्या लिखना है आपको कि f के बाद में कैपिटल X और इसका ये जो स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्वायर फॉर अ वाइल आपको प्रॉपर ऐसे लिख के दे रही हूँ। ये कैसे आई है? f कैपिटल X की वैल्यूज आई है आपके पास f मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे? x के स्क्वायर से। जो x का स्क्वायर आपने निकाला है उससे मल्टीप्लाई। बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि इस fx का स्क्वायर कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये जो fx दिया हुआ है आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है बेटा, आपको x का स्क्वायर करना है और उसको बाद में f से मल्टीप्लाई करना है। तो इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। x का स्क्वायर करके फिर मैंने 25 इंटू 2 किया, मैंने 100 इंटू 1 किया, 225 इंटू 4 किया और 400 इंटू 3 किया। तो ये क्रूशियल स्टेप है, यहाँ पे बुक में हाईलाइट कर दीजिएगा कि आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आई सिंपली नीड टू अप्लाई द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए जरा। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, इट मींस 2250 डिवाइडेड बाय n which is 10 in this question, माइनस में मीन का होल स्क्वायर, मीन इज 14, राइट? तो मैंने यहाँ पे 14 का होल स्क्वायर ले लिया। नाउ हैव अ लुक, 2250 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 196, that is the whole square of mean. 5.38 is the answer. आपका फाइनल आंसर तीनों चारों मेथड से सेम रहेगा, whether it is an individual series or discrete or continuous, whether you are using actual mean method or direct method or shortcut or step deviation, your answers will be same. ठीक है, चार मेथड्स अप्लाई अगर हो रहे हैं तो चारों मेथड से your answer will be exactly the same. तो ये हमने कैलकुलेशन समझा डायरेक्ट मेथड का। So after the actual mean method and the direct method, we are supposed to calculate standard deviation from shortcut method, or we can say assumed mean method. Shortcut method और assumed mean method से हमें calculations करके देखनी है। तो देखिए भाई, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, माइनस में सिग्मा एफ डी अपॉन n का होल स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और माइनस में सिग्मा एफ डी अपॉन n का होल स्क्वायर। कैसे कैलकुलेशंस करेंगे वो अभी देखते हैं। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूले के जस्ट नीचे एक छोटी सी चीज आपको लिख लेनी है, वो है d कैसे कैलकुलेट होता है। तो यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आपने मीन तो कर ही रखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल्स टू, कैसे आता है d, x माइनस a करके। तो हमें लेना है x की वैल्यूज और x में से हम एक वैल्यू अज्यूम करेंगे a। जब हम x में से उस a को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये d आ जाएगा।
बस बाकी कैलकुलेशंस आसान है, इसमें आपको मीन नहीं निकालना, इसमें आपको मीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट मीन। इसमें आपकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत डायरेक्ट और सिंपल है। तो देखते हैं किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है। फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा पहले आपको। हैव अ लुक। ये जो पोर्शन है कि टेबल में कितने कॉलम्स बनने हैं, यही सबसे खास है, यही आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। और ये अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से काम चलता रहेगा। तो हैव अ लुक, वैल्यूज ऑफ x आर गिवन, वैल्यूज ऑफ f इज आल्सो गिवन। नाउ यू हैव टू assume a value from x that will be treated as a assumed mean। मैंने मेरी x की वैल्यूज ऑब्जर्व करी और इसमें से मैंने 10 को a अज्यूम कर लिया। 10 is my assumed mean। Now what is the next step? अब मुझे x माइनस ए करके d कैलकुलेट करना है। हैव अ लुक, आपके लिए सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से लिख के दी हुई है। d इज इक्वल्स टू x माइनस ए, जो मैंने भी आपके लिए पीछे लिख दिया था। Right, now what you are supposed to do, you have to calculate d and you have to keep in mind the minus sign also, the negative sign also. So 5 minus 10 will be minus 5, 10 minus 10 will be 0, 15 minus 10 will be 5 and 20 minus 10 will be 10. Now I have to multiply this d and f for calculating this fd. This is fd, right? So f into d. 2 into minus 5 will be minus 10, 1 into 0 will be 0, 4 into 5 will be 20 and 3 into 10 will be 30. सब पहुंच गए हैं fd तक। Now what we are supposed to do, सिग्मा fd कर दीजिए। अब देखें बेटा, ये fd स्क्वायर है, यही सबसे खास स्टेप है। मैक्सिमम केसेस में व्हाइल राइटिंग इन द एग्जामिनेशन बच्चों को लगता है ये रहा fd, चलो फटाफट इसका स्क्वायर कर देते हैं। नो, f से मल्टीप्लीकेशन बाद में होगा, पहले d का स्क्वायर होगा। आई रिपीट, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट अ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ d। ये जो d आया है ना बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे। 5 5s are 25, 0 0, 5 5s are 25 and 10 into 10 is equals to 100। मैंने d का स्क्वायर किया। अब मैंने इस d के स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई किया है, यानी 25 into 2 is equals to 50, 0 into 1 equals 0, 25 into 4 equals 100 and 100 into 3 equals 300। आई रिपीट, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, छोटा सा यहाँ पे मेंशन कर लीजिए दैट एफ डी स्क्वायर के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू, एफ आपको इसको इनटू करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डी के स्क्वायर से। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि यहाँ पे आपको एफ डी स्क्वायर करने के लिए इसको डी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप क्रूशियल है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करनी है। ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर, तो ये रहा मेरा एफ डी स्क्वायर अपॉन n always means number of items in discrete series, it will be total of frequency, so sigma fd square upon n minus में fd upon n का होल स्क्वायर, तो fd 40 अपॉन n 10 इसका होल स्क्वायर। अब इसके कैलकुलेशन में बच्चों को लगता है ये क्या आ गया, इट इज नॉट टफ बेटा। 450 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 45, आपने आराम से कर दिया ये। अब देखिए 40 अपॉन 10 कर लीजिए पहले, इट विल बी 4, 4 का स्क्वायर आपको याद ही है, इट विल बी 16। आप और कहीं उलझेंगे तो दिक्कत आएगी, सिंपल कैलकुलेशन रखिए, जितना सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे उतना आसानी से आंसर आएगा। अंडर रूट में आया 29, 29 का जब हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे इट विल बी 5.38, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। आगे देखिए, so now have a look on fourth method, that is step deviation method। हमने 3 मेथड्स कर लिए, राइट? कौन कौन से कर लिए? एक्चुअल मीन मेथड, देन द डायरेक्ट मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन, सॉरी देन द शॉर्टकट मेथड, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, 1 स्टेप अहेड फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे आपका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस में सिग्मा एफ डी, सॉरी एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन
माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। ये सी बाहर है, अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे डी तो आपको पता है, डी है एक्स माइनस ए और सी है कॉमन फैक्टर। आप डी लोगे तो जब ए डी के लिए जो ए आप लोगे वो एक्स में से पिक करोगे, लेकिन ये जो कॉमन फैक्टर पिक होगा ये डी में से पिक होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। कॉमन फैक्टर डी में से पिक होता है और ए हमेशा एक्स में से पिक होता है, ठीक है। नाउ हैव अ लुक ऑन कैलकुलेशंस। आसान है, वापस बात वही है कि ये कॉलम्स आपको समझ में आनी चाहिए। एक्स और एफ मुझे डायरेक्ट गिवन है, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। एक्स में से ए अज्यूम करना है, मैंने एक्स में से ए अज्यूम कर लिया 10। अब मुझे डी निकालना है, ये रहा डी। कैसे आया, एक्स माइनस ए करके डी आ गया। अब मुझे इस d की वैल्यूज में से कॉमन फैक्टर लेना है। d है -5, 0, 5 एंड 10, तो मैंने d में से पिक कर लिया 5, क्योंकि 5 से सभी वैल्यूज डिवाइड हो सकती है, राइट। तो मैंने 5 ले लिया। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू इज -5 upon 5 will be -1, then 0, then 5 upon 5 will be 1 and 10 upon 5 will be 2। तो मैंने d डैश निकाला। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, आपको एक बार इस d डैश को f से मल्टीप्लाई करना है टू गेट दिस एफ डी डैश, और एक बार आपको इस d डैश का स्क्वायर करके फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना है। d डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में वो स्क्वायर f से मल्टीप्लाई होगा। यानी कोई सा भी मेथड हो, f से मल्टीप्लीकेशन आती है एकदम लास्ट में। f से मल्टीप्लाई हुई भी कोई भी वैल्यू का आपको स्क्वायर नहीं करना है, आपको तो स्क्वायर करके फिर लास्ट में f से मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप रहेगा स्क्वायर करना और उसके बाद में आपका स्टेप रहेगा उसको f से मल्टीप्लाई करना। तो बस हमने देखिए d स्क्वायर किया, यानी कि इन वैल्यूज का स्क्वायर किया। 1 into 1 is equals to 1 and 2 into 2 is equals to 4। बस ये d स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, d स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम f। तो 1 into 2 is equals to 2, 1 into 0 is equals to 0, 4 into 1 and 3 into 4, fd square आ गया, fd dash square। Now you are supposed to put these values in the formula और आपके पास आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। तो देखिए मैंने क्या किया, सिग्मा fd dash square कहाँ है, ये रहा लास्ट में जो अभी अभी कैलकुलेट किया है, अपॉन में n नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, then after sigma fd dash upon n का whole square, here is the fd dash 8 upon number of items 10 इसका whole square, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको इसको 5 से। तो योर फाइनल आंसर विल बी 5.38। चार मेथड्स थे, चारों यूज किए, चारों से हमारा क्या आंसर आया, 5.38 आया, यानी सेम टू सेम आंसर आया। ये हमने कर लिया है। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन गिवन है 2, 4, 6, 8 और f दिया हुआ है 3, 1, 4, 2। आई वुड सजेस्ट यू कि आप बुक्स क्लोज करके इस मेथड का सोल्यूशन करें। जितना अच्छे से करेंगे, बढ़िया तरीके से आपको पता चलेगा वेदर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग और नॉट। पहले चारों फॉर्मूले लर्न करने हैं हमको, और बाद में हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चारों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एक्चुअल मीन मेथड वाला जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये रहा फॉर्मूला। इसके लिए आपको एक तो मीन चाहिए और एक चाहिए स्मॉल एक्स। तो मैंने पहले इस f इंटू एक्स करके एफ एक्स अपॉन एफ करना है, मीन निकलेगा। मीन से आपको स्मॉल एक्स निकालना है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। फिर डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सीधा इस x का स्क्वायर करना है और उस x के स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, कैपिटल X का स्क्वायर और उसको f से मल्टीप्लाई। और उसके बाद में आप अगर आएंगे शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन की तरफ, तो वहां पे आपको fx की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आपको x में से a अज्यूम करना है, d निकालना है, d का स्क्वायर करना है, एक बार f और d को मल्टीप्लाई करना है, एक बार f और d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, यू विल गेट टू नो वेदर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग और नॉट, ठीक है।
इसके बाद में आएगी कंटिन्यूअस सीरीज। तो अभी तो हम यहीं तक कर रहे हैं, हमारा डिस्क्रीट सीरीज में चारों मेथड का डिस्कशन ओवर हो गया है, तो यहीं तक इसको स्टॉप कर रहे हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज इन आवर नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे एवरीवन।